Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and you all are revising the chapters that we are doing in video classes. Children, you know that since past few days, few videos, I have been explaining you chapter 14 of your EVS book. The name of the chapter is mentioned on the board, that is Animals Around Us. Children, as the name of the chapter is, this chapter is about animals and the explanation part of the chapter is over. In my previous video, I have explained to you the only concluding part which was left to be explained, that I explained in the previous video. So in today's video I will start with the exercise. पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, लेकिन एक पार्ट छूट गया था, दैट वाज रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, सो दैट आई कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियो. So in today's video we will be doing the exercises. Children, exercises I will be giving you from the content of the chapter and not from the exercises given at the end of the chapter, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं. अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे आज के वीडियो में वो मैं आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है पिछले कई वीडियोस में इस चैप्टर का, उन्हीं एक्सप्लेनेशन में से मैं दूंगी. तो इसके लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है. गो थ्रू द वीडियोस इफ़ यू हैव नॉट सीन, सो दैट यू कैन डू द एक्सरसाइज ऑन योर ओन. मैं एक्सरसाइज यहाँ सॉल्व करवाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन आपको खुद से भी करने आना चाहिए. इसके लिए आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हैं जो कि शायद चैप्टर में उतना डिटेल में नहीं बताया गया है. ओनली टॉपिक इज रिटन एंड फ्यू लाइन्स आर रिटन. वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हैं. तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज सो दैट यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइजेस. चिल्ड्रन, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले जो वीडियोस का, कि इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी जो उसके बारे में, एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड to get energy, to stay alive. They also have sense organs to feel the things in their surroundings. They also breathe through various organs. It is not necessary that animals breathe through their lungs only, because different animals may have different breathing organs. Then they also have their young ones, they also have their babies, whether they lay egg or they can have their babies directly. Then animals have tails. Most of the animals have tails and they use tails for various purpose. All these I have explained in the previous videos. Then I have explained you about types of animals, that is big and small animal, domestic and pet animal, wild animals, milch animal, mammals, aquatic animals, amphibians, reptiles, rodents, then insects, birds. All these I have explained in previous video. In insects I have given you, I have explained to you about different types of insects. Insects which have 6 legs, insects which have 8 legs, insects which have more than 8 legs, harmful insects, useful insects. इनके बारे में मैंने आपको बताया था. बर्ड्स टॉपिक था, उसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स बताए. I have informed you about the claws and beaks of animals, about the feathers they have, down feather, body feather, flight feathers. इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया. How do birds fly? What are their eating habits? Then the nestling, उनके बारे में उनको बताया कि नेस्ट वो जो है बर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ बनाती हैं, क्या क्या थिंग्स यूज़ करती हैं फॉर मेकिंग देयर नेस्ट. Then which birds fly, which birds do not fly. There are certain birds which cannot fly. ऐसे भी birds हैं. There are birds that can swim. There are birds that can fly very high. They are very good gliders. तो इन सब के बारे में मैंने अपने वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है. आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स दैट आई हैव डन इन द वीडियोस. ये सारे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, रिवाइज करवाए हैं, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है अपने पिछले वीडियोस में. तो
फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो मिस हो गई थी वो भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, दैट वाज रिगार्डिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स। लाइक एनिमल्स जो होते हैं उनके जो दांत होते हैं, टीथ, बीक, क्लॉज, पॉज, वो इस तरह से है उनकी ईटिंग हैबिट, उनके फूड हैबिट से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्क्विरल्स हैं, रैट हैं, रैबिट हैं, इनके शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ होते हैं, लॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं, सो दैट दे कैन नाउ देयर सीड और फूड वो कुतरते हैं ना, इसलिए उनके वैसे दांत होते हैं। फिर जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनके भी उसी हिसाब से दांत होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, सो दैट दे कैन टीयर द फ्लैश। जो टॉल एनिमल्स होते हैं जैसे जिराफ है, उसका गर्दन क्यों लंबी होती है, सो दैट इट कैन प्लक लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज। वो टेंडर लीव्स खाता है तो इट कैन रीच अप टू टॉल ट्रीज एंड इट कैन ईट टेंडर लीव्स। एलिफेंट्स हैव ट्रंक टू ब्रेक द ब्रांचेस। ये सारी चीजें जो है कैट एंड डॉग के आप देखेंगे कि शार्प टीथ होते हैं बिकॉज दे ईट फ्लैश। तो इसी बेसिस पर एनिमल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 तो कॉमन कैटेगरीज है, 4th मैंने आपको बता दिया था वैसे। पहले है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, दे ईट प्लांट, ग्रास, लीव्स। प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, फ्रूट्स एक्सेट्रा, लीव्स, ब्रांचेस खाते हैं, ग्रास खाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। दे डू नॉट ईट फ्लैश, उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। फिर होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, दैट ईट meat of other animals. It means they depend on other animals for their food and they are called carnivores. Then there are omnivores. Omnivores होते हैं जो plants भी खाते हैं और flesh भी खाते हैं, मतलब वो दोनों चीजें खाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जैसे क्रो है, बेयर है, डॉग है, कैट है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर ओमनीवोर्स क्योंकि हम इंसान दोनों चीजें खाते हैं। जो 4th है वो स्कैवेंजर्स है। आपके लिए नया वर्ड है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल को खाते हैं, मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स। वल्चर, हाइना, ये जो है इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, एक बार जस्ट आपको रिवाइज भी करवा दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हम फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट जो है चैप्टर का वो हम फिल इन द ब्लैंक्स में कवर करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स। We'll do fill in the blanks. So the first number is dash animals can live with us in our homes. Children, which animal can live with us in our homes? कौन से एनिमल्स है जो हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं? कौन से एनिमल्स हैं? पेट एनिमल्स। यस, पेट एनिमल्स can live with us in our homes. Number 2, we keep dash animals because they are useful for us. We keep which animals for they are useful for us. कौन से एनिमल्स है जिनको हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। We keep domestic animals because they are useful for us. Dash is a load carrying animal. You have to write the name of any one animal
दैट कैरी लोड फॉर अस, जो हमारे लिए सामान उठाता है, बोझा उठाता है. यू कैन राइट नेम ऑफ एनी एनिमल. सो इट कैन बी हॉर्स, इट कैन बी डोंकी. ओके, आई विल बी राइटिंग द नेम ऑफ डोंकी. डोंकी इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड इट कैरीज हैवी लोड. बहुत भारी भारी ये लोड उठाता है. ठीक है. नंबर 4, animals living in water are called dash animals. जो एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called aquatic animals. Aquatic animals. Then dash is a harmful insect. Now here you have to write the name of an insect which is harmful for us. Any insect which is harmful for us. So I would write mosquito. You can write any other insect. Housefly लिख सकते हो आप, mosquito लिख सकते हो आप, cockroach लिख सकते हो. I will write mosquito. Mosquito is a harmful insect. हमारे लिए ये नुकसानदायक होता है. Go through these 5 sentences, then I will give you some more. Okay, आप इसको एक बार देख लो. Next. Next, number 6. Lizard is a blank. Lizard क्या है? किस टाइप का एनिमल की कैटेगरी में आता है? Lizard is a reptile. Lizard जो होता है, lizard जिसको बोलते हो, lizard is a reptile. Okay? Then dash and dash are rodents. कोई भी 2 rodents के आपको नाम बताने हैं. Mouse, or you can say rat and rabbit. Rabbit is also a type of rodent. Sorry, R-A-B-B. Rabbit and mouse are considered they are a rodent. They have sharp teeth. Then next one is dash is a reptile as well as amphibian. Dash is a reptile as well as amphibian. आपको नाम बताना है एक ऐसे एनिमल का जो रेप्टाइल भी है और एम्फीबियन भी है. एम्फीबियन मतलब लैंड और वाटर दोनों में रहता है, और वो रेप्टाइल भी है. विच एनिमल इज इट? टॉर्टस भी लिख सकते हैं और क्रोकोडाइल भी लिख सकते हैं. ठीक है, आई विल राइट हियर क्रोकोडाइल. ठीक है. Number 8. Dash is a winged mammal. आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मैमल है जो उड़ता भी है. You have to name a mammal that can fly. It's a flying mammal. Which is a flying mammal? Bat. चमगादड़ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. Bat is a flying mammal.
ठीक है, या इसको विंग्ड मैमल ना करके इज अ फ्लाइंग मैमल भी बोल सकते हैं अगर आप ऐसे, इज अ फ्लाइंग मैमल। विंग तो नहीं होते उसके, हाँ, लेकिन इट फ्लाइज। इट्स अ बैट। बैट जो है वो अंडे नहीं देता है, बैट बच्चे देता है। इट्स अ मैमल एंड इट फ्लाइज, सो बैट इज अ फ्लाइंग मैमल। बैट जो है वो एक फ्लाइंग मैमल की कैटेगरी में आता है। देन अनदर वन इज ये 9 है। नंबर 10 इज dolphin is a नो, डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन इज एन डैश मैमल। डॉल्फिन कहाँ रहती है? पानी में। तो क्या बोलेंगे वाटर एनिमल को, क्या बोलते हैं? एक्वाटिक। सो डॉल्फिन इज एन एक्वाटिक मैमल, पानी में रहने वाली मैमल है। डॉल्फिन भी है और वेल भी एक्वाटिक मैमल है। वेल इज नॉट फिश, इट इज अ मैमल। ओके, नंबर 1 इज dash is called farmer's best friend। किसको फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है? इट्स एन इंसेक्ट, एक वॉर्म है। कौन सा वॉर्म है? अर्थ वॉर्म। यस, अर्थ वॉर्म इज कॉल्ड फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। Earthworm is called farmer's best friend. Okay, go on. You can note down this. Then I will give you few more fill in the blanks. Next one is number 12. Dash is a wild animal which can be tamed. टेम मतलब उसको पालतू बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा वाइल्ड एनिमल है जिसको पालतू टेम किया जा सकता है, उसको पालतू बनाया जा सकता है? It is elephant. Yes, elephant is a wild animal which can be tamed, जिसको कि पालतू बनाया जा सकता है। Okay, elephant is a wild animal that can be tamed. Then next one is dash is a reptile with no legs. कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके पैर ही नहीं होते? Name, you have to mention a reptile which has no legs. It is snake. Snake reptile है and it has no legs. Snake के कोई पैर नहीं होते हैं। Snake is a reptile with no legs. Dash is a bird which cannot fly. Now you have to write the name of a bird that cannot fly. The bird that cannot fly. कौन सी bird है जो उड़ नहीं सकती? चिल्ड्रन, मैंने आपको 3 birds के नाम बताए थे. You can write any one of it. Ostrich, kiwi और penguin. तीनों ही उड़ नहीं सकते हैं. So you can write name of any of it. I will write the name of ostrich. Ostrich is a bird which cannot
फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती है। ठीक है, वन मोर, दिस इज द लास्ट ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट है। स्पाइडर हैज डैश लेग्स। स्पाइडर के कितने पैर होते हैं? हैव यू सीन स्पाइडर? अपने घर के आसपास कोई स्पाइडर देखा है? यस, कितने पैर होते हैं? कभी काउंट नहीं किया है ना, लेकिन मैंने आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं। स्पाइडर हैज 8 लेग्स। स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं। स्कॉर्पियन के भी 8 लेग्स होते हैं। जो बिच्छू होता है उसके भी 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। 15 ब्लैंक्स हमने किए हैं। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए सो दैट आई कैन इरेज। Now we will do some question answers. चलिए क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन, why do we keep animals as pet? हम एनिमल्स को पेट बना के क्यों रखते हैं? या क्वेश्चंस को यूं भी कह सकते हैं, व्हाई डू वी कीप पेट एनिमल्स? हम पेट एनिमल्स को क्यों रखते हैं? हमारे लिए यूजफुल तो नहीं होते हैं, ना हमें मिल्क देते हैं, ना हमारे लिए सामान, वो दे डू नॉट कैरी लोड फॉर अस, लोड कैरिंग भी नहीं होते हैं, कोई यूजफुल भी नहीं होते, स्टिल वी कीप देम। व्हाई? आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को पेट क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ कीपिंग एनिमल्स एज पेट? चिल्ड्रन, इसके बहुत सारे आंसर आप अपने तरफ से भी सोच सकते हैं। वॉट आई फील इज दैट वी कीप एनिमल्स एज पेट बिकॉज वी नीड अ कंपेनियन। वो हमारे लिए बेस्ट कंपेनियन होते हैं। दे कीप अस हैप्पी, वो हमें खुश रखते हैं। हम उनके साथ, बच्चे तो स्पेशली पेट एनिमल के साथ खेलते हैं ना, वी प्ले विद देम एंड दे मेक अस हैप्पी। वो हमें खुश रखते हैं। दे आर बेस्ट कंपेनियंस, वो साथी होते हैं हमारे लोनलीनेस में, अकेलेपन में वो बेस्ट कंपेनियन होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। तो अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम एक सिंपल सा लिखेंगे, आंसर इसका लिखेंगे, वी कीप एनिमल्स एज पेट बिकॉज दे आर, वी कीप एनिमल्स एज पेट बिकॉज दे आर कंपेनियन, दे मेक अस हैप्पी, दे मेक अस फील हैप्पी। Pet animals are best companions. They make us feel happy. Pet animals are best companions. They make us feel happy. वो हमें खुश, हम उनके साथ जब रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। अगर हम बड़े की भाषा में बोले तो हमें स्ट्रेस फ्री रखते हैं। आप कभी पेट एनिमल्स के साथ रहोगे तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी। दे आर वेरी प्लेफुल और दे आर वेरी लॉयल। व्हेन यू लव देम दे विल ऑल्सो लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एम्फीबियंस? व्हाट आर एम्फीबियंस किसको बोलते हैं?
Amphibians किसको बोलते हैं? Children, amphibians are animals that can live both on land and in water. Okay? Amphibians are animals which can live on land and in water. Okay? Animals which can live on land and in water are called amphibians. उनको हम amphibians बोलते हैं. Next है which reptile can change its color? या name a reptile that can change its color according to surrounding. To the surroundings. Name a reptile that can change its color according to the surrounding. कौन सी ऐसी रेप्टाइल है जो कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं? चिल्ड्रन, इट इज chameleon. Yes, chameleon can change its color according to its surrounding. सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कमेलियन जो है वो अपना कलर चेंज कर सकती है. ठीक है, और गो थ्रू दिस क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस हैं, देन आई विल गिव यू सम मोर. नेक्स्ट, who are carnivores? Next question is question number 4. Who are carnivores? Carnivores किसको कहा जाता है? The animals that eat other animals. The animals that eat flesh of other animals are called carnivores. The animals that eat flesh of other animals are called carnivores. Okay, animals that eat flesh of other animals are called carnivores. Okay, next one is who are herbivores? Who are herbivores? Herbivores किसको बोलते हैं? The animals that eat grass, plants, grains, etc. are called
herbivores. The animals that eat grass, plants, grains are called herbivores. मतलब जो लीफ खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं, the animals that do not eat flesh are called herbivores. उनको भी हम herbivores बोलते हैं. Children, we have done 5 questions today and 15 fill in the blanks. We will do some more exercise, not some more, many more exercise. अभी हमें one word करना है and choose the correct options भी करना है. And all that we will do in the next video. आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं and we will meet in the next video. तब तक आप रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए और जो भी डाउट है उसे आप क्लियर कीजिए अपनी ऑनलाइन क्लास में. ओके, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.